करते हैं, अभी कैश फ्लोज करते हैं, इसके बाद हम ऑफ कोर्स लंच पे जाएंगे. सो हो ही गया आई गेस कैश फ्लोज करने के बाद, देन खत्म कर लेते हैं. विल यूज बिकाजी के एग्जांपल ओनली. ओके, विल यूज बिकाजी के एग्जांपल इन कैश फ्लोज. वेयर इज इट? हाँ, ओके ओके. सो फर्स्ट इज, one second, did I share my screen? No. हाँ, so now here is the cash flow statement. ठीक है. So basically cash flows क्या होता है? Cash flows वही है, as I said, कि like your profits and cash are two different things. Okay, there are times when, let's say for example, the companies can report a lot of sales, but that might not be converted into cash. I mean, there are you must have heard these terms like cash is king and all that, right? So the thing is there are some caveats here. Okay, the first thing is कि like you must have understood one thing here, जो हम बोलने का यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि for a big company, an established company, you will see that the cash flow statement is very good. They are sitting on a lot of cash, right? Because they have been big, मतलब already they have become big, इस तरीके से बोल सकता हूँ. ठीक है, they have become big, they have been growing operations for the last 20, 30, 40 years in a country like India. ठीक है, so the cash flow statement will look very good. But here is how we want you to perceive it. ठीक है, and I want you guys to like प्रेरणा एक बार chat box को just open करो. Just want you guys to like just to understand the concept here and tell me if you agree with me here. A small company trying to grow big. Let's say if I am a small company, I have only 2 stores. Okay, and 2 stores say, how would I make so much money? You tell me from profits that I will open 20 more stores, because I'm in a growth phase, right? And we are looking for growth. So from 2 to 20, if I am looking to grow at a fast pace, I won't be able to do it with my own internal accruals. So then I will have to dilute my equity, which is QIP, or I have to raise debt, or I have to do both. Do you guys agree with this? Got it? That's why you saw yesterday we focused a lot on this part, right? Like all the companies which are growing are doing a lot of QIP. Now you know why. You will never see businesses like Hindustan Unilever, then HDFC Bank and all that doing QIP. Because उनको चाहिए नहीं वो कैपिटल टू ग्रो, बट ग्रोथ के लिए यू नीड दैट काइंड ऑफ कैपिटल सो दैट आप स्केल कर पाओ अपने बिजनेस को. बट व्हेन यू आर यूजिंग क्यूआईपी मनी, और व्हेन यू आर यूजिंग, लेट्स से फॉर एग्जांपल, see again this guy asks, QIP hurts EPS. It hurts EPS right now. It doesn't hurt EPS in the long run, right? But you have to grow, right? If you think you don't want to hurt current EPS, तो यही के यही पढ़ रहे होगे क्या 2 दुकान लेके, मतलब वही अपने गली का कुत्ते के जैसा. तो समझो क्या है गेम, क्या है. इफ यू लुक एट इट फ्रॉम एन एकेडमिक पर्सपेक्टिव तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आप QIP कर रहे हो फ्यूचर ग्रोथ के लिए. गॉट इट? सो नाउ हियर इज द गेम. तो जब आप ये सब करते हो, QIP, डेट एंड ऑल दोस थिंग्स, आपके पास कैश फ्लोज नहीं होता है. बिकॉज इन एनी विच में इसके बाद भी व्हेन यू आर गेटिंग द मनी फ्रॉम द बिजनेस, आप उसको और लगा रहे हो इन्वेंटरी में, है ना. आप इन्वेंटरी में पैसा डाल रहे हो और आप दुकानें खोलने में डाल रहे हो, फिर इतना कैपिटल चाहिए कि बाहर से पैसे भी डाल रहे हो. सो जब 3-4 जगह से जब भी पैसा आ रहा है आप उसको डिप्लॉय किए जा रहे हो. सो टेल मी वन थिंग, फॉर अ स्मॉल बिजनेस, कैन यू टेल मी कि एक छोटा बिजनेस जो ग्रो कर रहा है, ठीक है, उनके पास कैश होना चाहिए, यस और नो? करेक्ट. Do you get this logic here? This is the most important logic, because most of the times when I see businesses that are scaling up, growing, और उनका cash flow statement negative होता है, investors would jump in and say कि cash flow negative है, खराब business है. When the business is doing all the right things. So क्या होता है ना, एक small business with negative free cash flow, जब तक उसका cash flow positive होगा ना, let's say उसका stock तब तक 10x 50x हो जाएगा. Are you getting the point? कि लोग क्यों एक पर्टिकुलर कंपनी में पैसा डाल के उसमें सस्टेन नहीं कर पाते हैं? बिकॉज दे आर लुकिंग एट इट, उनका देखने का नजरिया ही पूरा गलत है. बिकॉज देखो ना, लॉजिकली सोचो, अगर इफ यू वांट अ परफेक्ट बैलेंस शीट एंड अ परफेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट, देन द बिजनेस इज ऑलरेडी बिग. You can't expect a business, or there is another example, a perfect balance sheet and a perfect cash flow statement for a small business which has no ambitions to grow. Tell me you understand these two concepts. A big business has a perfect balance sheet and a perfect cash flow statement. A small business with a perfect balance sheet and a perfect cash flow statement with no aspirations to grow. ये दोनों कैटेगरी हमें नहीं चाहिए. समझ में आ रहा है?
हमें क्या चाहिए? द थर्ड कैटेगरी, अ स्मॉल बिजनेस which has aspirations to grow. So when you have aspirations to grow, that is when you need external money, that is when you need to dilute equity, that is when you need money constantly to put into inventory. से आज मेरा 2 दुकान से जब 20 दुकानें होगा, तो 20 दुकानें का इन्वेंटरी में सोचो कितना पैसे लगेगा, उसके लिए तो मुझे फंडिंग चाहिए। 2 दुकान से मैं 20 दुकान में कैसे जाऊं? Now you would come and tell me इतने अच्छे रेट से ग्रो क्यों करना है? Now if you don't want to grow, then in any which way you're not going to make any money. So तो फिर वो डिस्कशन ही पूरा फालतू। आप देखते हो ना, आपके इलाका में कोई मिठाई का दुकान, वो उसका एक दुकान था 30 साल पहले, आज भी 30 साल बाद वही एक दुकान में बैठे हैं। ऐसे बिजनेसेस हमें नहीं चाहिए। देयर आर मेनी कंपनीज इन इंडिया। आप देखोगे देयर इज अ कंपनी कॉल्ड शीतल कूल प्रोडक्ट्स। उस कंपनी को तो गुजरात से बाहर जाना ही नहीं है, वो सिर्फ आइसक्रीम बेचने वाला एक कंपनी है, ठीक है। इफ यू गाइस, एनी ऑफ यू गाइस आर फ्रॉम गुजरात, यू विल नो, आपने शायद उसका प्रोडक्ट टेस्ट भी किया हो। लेकिन शीतल आज तक शायद कब से वो बिजनेस में है, वो गुजरात से पैन इंडिया बन सकता था, है ना, लेकिन उसको जाना ही नहीं है। एक और मैं एग्जांपल लेके बोल सकता हूं, लेट्स से थंगामाइल ज्वेलरी इन साउथ इंडिया, ठीक है। जैसे कल्याण भी साउथ इंडिया से चालू हुआ, और देखो कल्याण का वो भूख था कि वो पूरा पैन इंडिया बनना है, लेकिन थंगामाइल को देखो वही के वही पड़ा है, ठीक है। कभी चेन्नई के बाहर इधर दुकान खोलता है, तो कभी चेन्नई के अंदर उधर दुकान खोलता है, ठीक है। सो ऐसे बिजनेसेस मुझे अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज देखो यू कैन बी अ स्मॉल बिजनेस विद अ स्मॉल मार्केट कैप, बट से इफ यू हैव अ पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो, इफ यू हैव ऑल द थिंग्स, अ परफेक्ट बैलेंस शीट, दैट मीन्स यू लैक एस्पिरेशन टू ग्रो। समझ में आ रहा है? सो द बेसिक थिंग इज वेरी 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 सिंपल हियर, ठीक है। वी नीड अ स्मॉल बिजनेस बिकॉज यू नीड कैपिटल एप्रिसिएशन इन द स्टॉक मार्केट ना, एंड दैट इज व्हाई द डिस्कशंस हियर, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग द वर्कशॉप हियर, ओके। सो अभी हम लोग वापस चलते हैं, ठीक है। ओके, तो बीकाजी का यहां पे अभी हम कैश फ्लोज देखते हैं। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड, ओके, आई जस्ट नीड टू चेंज दैट स्क्रीन शेयरिंग। हाँ, वेट, C30, हाँ हाँ। प्रेरणा, इज इट विजिबल, लाइक कैन यू सी? Yeah. All the line items are also visible. कूल। तो अभी देखो, दिस इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, लिखा ही है, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का 3 कंपोनेंट होता है, ठीक है, सीएफओ, सीएफआई एंड सीएफएफ। सीएफओ क्या है? पूरा ऑपरेशंस करने के बाद तुम्हारे पास कितना कैश है। सीएफआई है बेसिकली द कैश जो तुम इन्वेस्ट करते हो अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए, और सीएफएफ है बेसिकली कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, मतलब जो कैश लेट से आज मैनेजमेंट डिसाइड करता है वो इन्वेस्टर को देगा, लेट से डिविडेंड्स एंड ऑल दैट, वो आता है सीएफएफ में। सो मैंने क्या बोला, अगेन अगेन रिपीट कर रहा हूं, हम यहाँ पैसे बनाने आए हैं, एमबीए डिग्री लेने नहीं आए हैं। तो हम उतना ही सीखेंगे जितना हमें सीखना चाहिए। पहला चीज जो आपको करना है, ये जो सब देख रहे हो ना, ये सब कुछ नहीं सीखना है, ये सब फालतू चीज है। इफ यू आर एन अकाउंटेंट ओनली, देन आप यहाँ पे दिमाग लगाओगे, आप डायरेक्टली आओगे इस पॉइंट पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। बिकॉज आई टेल यू वन थिंग, अगर आपको लगता है ये नंबर को आपको देखना है, ऑल दैट देख के भी आप क्या कर लोगे, बिकॉज ये नंबर जो दिया आपको, तो वैसे भी इस नंबर को देख के बिलीव करना है। गॉट इट? सेकंड लॉजिक ये है कि अगर आप इस नंबर में घुस जाके टाइम बर्बाद भी कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली ये नंबर जैसा है, जैसा आपको दिखा रहा है, आपको उसी पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, है ना। सो अब यहाँ पे आना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब देखो यहाँ पे बिफोर वर्किंग कैपिटल और आफ्टर वर्किंग कैपिटल का 2 सीएफओ का कैटेगराइजेशन किया। तो यहाँ पे आप देखो, ये कंपनी का 20,000 रुपए का इनका कैश है, ठीक है। अब कोई जजमेंट मत करो, ठीक है, जस्ट सीखो बात को, ठीक है। हम लोग सारी चीज को कनेक्ट करेंगे, जैसे बैलेंस शीट के साथ कनेक्ट किया, इनकम स्टेटमेंट के साथ, इसके साथ भी करेंगे आराम से। सो 20,000 रुपए इनका कैश है। अब मैंने क्या बोला, कोई भी बिजनेस पे सबसे ज्यादा खर्चा डे टू डे ऑपरेशंस चलाने में हमको वर्किंग कैपिटल में पैसा डालना पड़ता है। तो इसीलिए हमारे अकाउंटिंग मेथड्स ये बोलता है कि तुम्हारे सीएफओ में सबसे बड़ा अच्छा कंपोनेंट कौन होता है, वो तुम्हारा होता है वर्किंग कैपिटल में, करेक्ट। अब वर्किंग कैपिटल क्या है, ये देखो, रिसीवेबल्स हो गया, इन्वेंटरी हो गया, समझ में आ रहा है, पेएबल्स हो गया, करेक्ट। इससे क्या होता है, सोचो, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। वर्किंग कैपिटल चेंज मतलब क्या, मतलब कंपनी के पास कितना कैश है। अब सोचो लॉजिकली, लास्ट ईयर मुझे अपने सप्लायर को 10 रुपए देना था, 10 रुपीज फॉर द रॉ मटेरियल। दिस टाइम मुझे अपने सप्लायर को 12 रुपीज देना है। मतलब क्या, लॉजिकली मुझे बताओ कि मेरा यहाँ पे पेएबल्स बढ़ा, मतलब मेरे पास 2 रुपीज एक्स्ट्रा कैश है ना, मतलब मेरे पास कैश है, यहाँ पे मेरा कैश फ्लोज बढ़ेगा। दूसरे साइड में लास्ट ईयर मुझे मेरे कस्टमर से मुझे 10 रुपीज मिलना था, लेकिन इस बार मुझे अपने कस्टमर से 12 रुपीज मिलना है।
मतलब क्या? मतलब मेरे को 2 रुपीज और एक्स्ट्रा कम मिला, मतलब -2 हुआ। तो मेरा यहाँ पे सीएफओ का क्या हुआ? +2 एंड -2। एक बार आप लोग ये बता दो, चैट बॉक्स खोलो, बोलो ये बात समझ में आया? ये जो चेंज का हमने जो बात किया, फिर से समझो। मुझे अगर मेरे पास, मतलब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं कि मेरे पास कितना कैश है, करेक्ट? अगर मैं अपने सप्लायर को और ज्यादा से ज्यादा पैसा दे दूं, तो मतलब मेरे पास कम कैश होगा ना, राइट? और दूसरे साइड से सोचो, मेरा कस्टमर से मेरे को जितना ज्यादा पैसा मिलेगा, मेरे पास और ज्यादा कैश होगा। लेकिन अगर मेरा कस्टमर्स मुझे और टाइम बढ़ा रहा है और कम पैसा दे रहा है, तो मेरे पास कम पैसा होगा। गॉट इट? सो जितना मेरा पेएबल्स बढ़ेगा, लॉजिकली बताओ, जितना मेरा पेएबल्स बढ़ेगा, क्या मेरे पास ज्यादा कैश होगा या कम कैश होगा? ये बताओ तो। पेएबल्स मतलब मेरा सप्लायर, मोर, राइट? मतलब मेरे पास और ज्यादा कैश होगा ना, बिकॉज मैं तो अपने सप्लायर को और कम पैसा दे रहा हूं, मेरे पास और ज्यादा कैश होगा, तो मेरा कैश फ्लो में सीएफओ बढ़ेगा। दूसरे साइड से सोचो, मेरा रिसीवेबल्स जितना बढ़ेगा, क्या मेरे पास ज्यादा कैश होगा या कम? करेक्ट। समझ में आ गया? सो बेसिकली यही ट्रैक करते हैं कंपनीज के Guys, रिसीवेबल्स। या just a second. Another way to put it is, think about this. Rajoshi is a bhujia wala company. I'm the supplier who's giving him the chickpea flour. So he has to pay me, right? Payable means what? You have to pay somebody, right? The other way, he is selling his bhujia to all the other customers. So he has to get money for what he's selling. So receivable, getting the money. Got it? Now, if Rajoshi is not paying me, right, he's not paying me for buying that basin, he will have more money now because he's not paying me. Got it? Yes or no? Right? At the same time, if he has sold, but if his customer is not paying him, he will not make any money. Right? ये आपको समझ में आ गया? So basically the best case scenario for me in terms of having more cash is to make sure that I get more and more upfront money from my customer and I exploit प्रेरणा more and more. बोलो ये समझ में आया? एक बार खोलो चैट को। क्योंकि the more I exploit प्रेरणा, the more I pay her less. And उल्टे साइड में I get my customer to pay me more and more money upfront. So now think about this from various business perspective. Look at a business like, say for example, जो मैंने अपना example दिया, like you guys paid me before I even started the workshop. So mine is the best case scenario. ठीक है? वरना मैं आपको एंट्री नहीं देता वर्कशॉप में। समझ में आया? That's how my entire model works. This is the best case scenario. Second best case scenario is when you go to a place like Domino's. Domino's में जब आप जाते हो तो what do you see? That first you have to make the bill payment. ठीक है? फिर आपको वो ऑर्डर नंबर देते हैं and then you have to wait to get the product, right? And then there are other examples. Say for example, कोई भी B2B कंपनी को ले लो, कोई रोप बना रहा है, स्टील पाइप्स बना रहा है, डीलर्स के साथ जो डील कर रहा है, जो अपना माल बना के देता है and expect to get paid after a certain period of time. So now the point is this. यहाँ पे I just told you a concept. It doesn't mean that any model is better than any other model. I hope you guys are getting the point here. There are certain business models, like an online business model में there won't be any problems with cash. It cannot be. मतलब अगर किसी को ऑनलाइन बिजनेस में कैश का प्रॉब्लम हो रहा है तो मतलब वो बहुत ही घटिया है, ठीक है? लेकिन ऑन द अदर हैंड आई कांट कंपेयर माय बिजनेस विद, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अ सीमेंट मैन्युफैक्चरर, एंड देन आई कांट से कि लाइक कि मेरा देखो, मेरा यहाँ पे कैश फ्लोज इज बेटर देन योर्स. सो नाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? टेल मी. यस, वेरी सिंपल हियर. ओके, सो नाउ हम लोग यहां पे क्या करेंगे, वो बिकाजी वाले पे जाते हैं वापस. अभी देखो, सो बेसिकली ये चेंजेस आपको समझ में आ गया होना चाहिए. अभी देख रहे हो इंक्रीज और डिक्रीज इन रिसीवेबल्स. नाउ व्हाई डू यू थिंक इट्स अ नेगेटिव नंबर? पता है? बताओ लॉजिकली, अभी आपको समझ में आ जाएगा. रिसीवेबल्स का नंबर घटा है, मतलब क्या? मतलब उनके कस्टमर्स ने उनको 3,000 रुपए और कम दिया है. समझ में आ रहा है? इसलिए कंपनी के पास 3,000 रुपए का कैश कम है. गॉट इट?
रिसीवेबल्स इज तुम्हारे कस्टमर, पिछले साल का जो रिसीवेबल था इस साल का रिसीवेबल उससे 3075 रुपए और बढ़ा तो दिस इज कैश जो कंपनी को और नहीं मिला, सो इट्स अ नेगेटिव अमाउंट। नाउ लेट्स लुक एट पेएबल्स। अब देखो पेएबल्स इज अ पॉजिटिव नंबर फॉर मी, मतलब क्या, मैंने अपने सप्लायर को और ज्यादा एक्सप्लॉइट किया, so I have more cash now, so there is more cash means positive, this bracket means negative। समझ में आया कि मैं क्यों वो एग्जांपल पहले बोला। एंड द थर्ड इज इन्वेंटरी। अब देखो you will always have to let cash go na to buy inventory, buy means to make those bhujia packets, nobody can say कि I have built a product और जहां पे यहां पे मेरा increase in inventory negative नहीं होगा। I mean, you cannot have positive inventory. It's not possible, right? Because your cash will always go out. Because वो भुजिया बनाने के लिए तुमको तो वो मतलब वो सारे रॉ मटेरियल के लिए खर्चा करना पड़ता है, पूरा वो भुजिया का पैकेट बनाना पड़ेगा। Got it? So now you know why the inventory number is always negative. होना ही चाहिए। And this number, receivables is negative and payables is positive. Tell me, you guys understood this? बस हो गया, सीख गया आप कैश फ्लो। समझ में आ रहा है कि वो नेगेटिव क्यों है? वो नेगेटिव इसलिए था रिसीवेबल्स का बिकॉज पिछले साल से इस साल में उनका जो कस्टमर्स है उनको 3000 रुपए और कम दिया, तो उनके पास 3000 रुपए बिकाजी का कम है, तो इसलिए वहां पे नेगेटिव। दूसरे साइड में इन्वेंटरी में और 5000 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा किया इन दिस पर्टिकुलर पीरियड, तो इसलिए वो नेगेटिव बिकॉज कैश इज गोइंग आउट। एंड देन ऑफ कोर्स रिसीवेबल्स इज पेएबल्स इज अ पॉजिटिव नंबर। दैट मींस क्या किया, उनका जो सप्लायर है वो सप्लायर को और थोड़ा कम दिया और उसके इसीलिए उनके पास और थोड़ा ज्यादा पैसा है। सो बेसिकली क्या है, यही है सिचुएशन। ठीक है, ओके, आई थिंक इट्स प्रीटी क्लियर हियर। हाँ हाँ, ओके। सो अभी क्या हो गया, हाँ। सो अभी लेट्स जस्ट फिनिश दिस ऑफ। प्रेरणा, कैन यू सी दिस स्लाइड अगेन? I can see the cash flow here, Bikaji ka. बिकाजी का, तो हाँ वही ठीक है। तो अभी देखो, जब तुम अपना ऑपरेटिंग कैश फ्लो से तुम अपना वर्किंग कैपिटल चेंजेस को कर लोगे तो तुम्हारे पास बचता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, जैसे मैंने बोला, ठीक है, हमें सिर्फ ये वाले पार्ट को थोड़ा सा फोकस में आप रख सकते हो, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली वही पार्ट है ना, आप इन सब में जाके क्या लड़ाई करोगे अगर बिजनेस का सेल्स ग्रोथ ही नहीं, तब ये सब कुछ गड़बड़ी हो रहा है। ठीक है, तो पॉइंट वही है, सिखाने के लिए, नहीं तो बाद में आप ही मुझे बोलोगे कि कैश फ्लोज नहीं सिखाया। बट एनी विच वे, सो बेसिकली आपका जो नेट कैश फ्लोज बनता है वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद, वो कितना बनता है, 10,000 रुपए। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि ये पर्टिकुलर पीरियड में हमें देखना है कि कंपनी ने लॉन्ग टर्म मतलब फिक्स कैपिटल में कहां कहां कैश डाला। ठीक है, तो आप वहां देखोगे ये 10,000 में से 4,000 रुपए डाल दिया कहां पे, कोई एक्स्ट्रा, लेट से फॉर एग्जांपल कोई अपना एक ब्राउन फील्ड केपेक्स किया होगा, कोई डिस्ट्रीब्यूशन में खर्चा किया होगा। तो आउट ऑफ दिस 10,000 रुपीज, बिकॉज बाय द वे वी स्टार्ट कहां से, वी स्टार्ट फ्रॉम नेट प्रॉफिट। गॉट इट, बिकॉज हम नेट प्रॉफिट से चालू करके हम कैश में आ रहे हैं। ठीक है, सो नेट प्रॉफिट कितना था, 17,000 रुपीज। उसमें से सारे वर्किंग कैपिटल ये सब कुछ करने के बाद हमारे पास कितना बचता है, 10,000 रुपीज। 10,000 में 4,000 रुपीज कहां जाता है बोलो, गया उसने लॉन्ग टर्म, मतलब ये जो लॉन्ग टर्म एसेट्स में दिया, प्लान प्रॉपर्टी इक्विपमेंट दिया, कुछ लोन्स का रीपेमेंट इधर उधर का करके। फिर तुम्हारा देखो अल्टीमेटली क्या होता है, तुम्हारा नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनता है नेगेटिव। ठीक है, विच इज नॉट अ नेगेटिव साइन, बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल इन्होंने अपने सब्सिडी में भी इन्वेस्ट किया। ठीक है, नाउ सब्सिडी में इन्वेस्ट करना मतलब, डू यू इन्वेस्ट इन अ सब्सिडी फॉर लेस देन अ ईयर और मोर देन अ ईयर? इफ इट वाज लेस देन अ ईयर, देन वो इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो यहां आता, समझ में आ रहा है, वर्किंग कैपिटल में आता। लेकिन जैसे मैंने बताया था, वर्किंग कैपिटल एक साल के नीचे, फिक्स्ड कैपिटल इज मोर देन 1 ईयर में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है। सो यहाँ पे क्या सीन है, सिंस जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, जहां पे भी आप पैसा आप फेक रहे हो, because whenever you're investing in inventory or you're investing in fixed capital, cash is going out na, that is why you will always see कि purchase of plant property in equipment, then invest in subsidiary, these will always have a negative implications of cash, because it's like you buying a stock। जब आप स्टॉक खरीदते हो, आपके डीमैट आपके सेविंग्स अकाउंट से तो वो पैसा चला जाता है ना। सो बेसिकली आपका अगर मैं कैश फ्लो करूं, एवरी टाइम यू बाय अ स्टॉक, आप देखोगे आपका कैश कंपोनेंट ऑफ योर नेटवर्थ इज गोइंग डाउन। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर ट्राइंग टू शो हियर। सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे, और ये जो पॉजिटिव नंबर है मतलब क्या, कंपनी को पैसा मिला है, गॉट इट, और नेगेटिव मतलब द मनी हैज लेफ्ट द कंपनी। ठीक है,
सो ये हो गया। और फिर उसके बाद आप देखोगे, उसके बाद यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करो, आप एक चीज देखोगे, ये कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पे दो चीज है, एक तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे और कैश नहीं बचा है, ठीक है, इसीलिए डिविडेंड कहां से देगा। दिस इज पॉइंट नंबर वन। एंड पॉइंट नंबर टू ये भी है, आप मुझे ये बोल सकते हो कि भाई ये कंपनी ग्रो ग्रो करेगा या डिविडेंड देगा। मैं आप बोल रहे हो ये कंपनी ग्रो कर रहा है, कैसे पता आपको? बिकॉज देखो यहाँ पे प्लान प्रॉपर्टी में पैसा डाला, फिर उसके बाद सब्सिडी में पैसा डाला, वो चाहता था तो ये पैसे को लेके आपको डिविडेंड भी दे सकता था, राइट। तो आप आज खुश होते, लेकिन कंपनी में और ग्रोथ नहीं आता, तो आगे जाके अगर बीकाजी में 20% का ग्रोथ आपको मिलेगा, वो आएगा बिकॉज वो यहाँ पे 4,000 रुपए डाला और यहाँ पे 6,000 रुपए डाला। चैट बॉक्स खोलो, बताओ सबको ये समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? तो अभी एक बात बताओ, एक छोटा कंपनी जब ग्रो कर रहा है, डू यू एक्चुअली वांट डिविडेंड्स, यस और नो? Yes, you don't want dividends. So that's why I don't like dividends, to be very honest. ठीक है? So जो कंपनी आज आपको डिविडेंड दे रहे हैं, I don't want them to pay dividends at the cost of investments in fixed capital and working capital. समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया, देखो अब फिर से मैं उसमें जा रहा हूँ वापस, ठीक है। ये वाले स्लाइड में देखो, व्हाट वाज द इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। अगर मैं सिर्फ इन्वेंटरी को लूं तो 5,800 रुपए उन्होंने सिर्फ वर्किंग कैपिटल में पैसा डाला, ठीक है। फिक्स कैपिटल में देखो कितना डाला, और 4,000 यहां पे, और 6,000 का सब्सिडी में भी डाला। सो टोटल आप लोग मुझे ये बोल सकते हो कि टोटल 16,000 रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया इन वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल। फिर से चैट खोलो, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये करने के बाद कोई डिविडेंड दिया, अब आप बोलो, इज इट अ गुड साइन और अ बैड साइन? Yes, it's an excellent sign actually. Somebody wrote excellent. So my point is very simple here, ठीक है, कि if you are running a business, ठीक है, और सोचो ना, लॉजिकली सोचो, कोई कंपनी लेट्स से बीकाजी को अगर ग्रोथ नहीं दिखता, व्हाट डिड आई टेल यू, बीकाजी एंटर्ड छत्तीसगढ़ एक महीने पहले, दे डोंट हैव एनी प्रेजेंस इन छत्तीसगढ़, ठीक है। तो सोचो जब वो छत्तीसगढ़ में जाएगा तो उनको शायद ये जो इन्वेंटरी में जो नया पैसा डाला, जो नया जो भुजिया का पैकेट्स बनाया, शायद वो छत्तीसगढ़ का डिस्ट्रीब्यूशन में लगाएगा। गॉट इट? वर्सेस जो बंदे को ग्रोथ समझ में नहीं आता है, वो बोलेगा भाई मैं बंगाल में ही रहा हूं और भाई मुझे बंगाल से बाहर नहीं जाना है, ठीक है, और मैं वही जो पैसा मेरे पास आया, जो प्रॉफिट आया, करेक्ट, बिकॉज हमने कैश फ्लोज कहां से चालू किया, नेट इनकम से चालू किया। गॉट इट? जो प्रॉफिट आया उसको मैं डिविडेंड बना के शेयर होल्डर को दे देता हूं। नाउ डू यू अंडरस्टैंड इट्स अ प्रॉब्लम? बोलो ये समझ में आया कि नहीं? परफेक्ट। सो द गेम इज एक्चुअली वेरी सिंपल हियर। आप देख रहे हो कि राइट, कोई भी चीज को आप जनरलाइज नहीं कर सकते हो, हर चीज का मतलब करने का कारण होता है। बट जनरली जो हमें सिखाया गया है, व्हेन यू रीड ऑल दिस बिग इन्वेस्टिंग बुक्स, आप देख सकते हो रियलिटी कितना अलग है। टेल मी दिस, बिकॉज व्हेन यू रीड बुक्स यू विल फाइंड के लाइक कैश इज किंग, ऐसे टर्म सुनोगे आप, ऐसे सुनोगे लाइक ऐसे कंपनीज को खरीदो जिसका बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फ्री कैश फ्लो इतना स्ट्रांग होना चाहिए, they pay dividends and all that. Now do you understand problem क्या है? I mean tell me this. ये अगर समझ गए तो आपको स्टॉक मार्केट में आप एक्टिव इन्वेस्टर बन जाओगे और बहुत पैसा छापोगे। बिकॉज द प्रॉब्लम हियर इज के लाइक मोस्ट पीपल कुछ बुक्स पढ़ लेते हैं। नाउ I'll give you some logic here, ठीक है। Now say I'll take Warren Buffett's example. Warren Buffett looks for free cash flow and all those things, right? आपको ये भी देखना है कि Warren Buffett is a 90-year-old man, ठीक है। वॉरेन बफे को अभी ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है, उसका बर्कशायर हैथवे में ग्रोथ भी नहीं आएगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ही नीड्स कैश, ठीक है। और बाय द वे वॉरेन बफे का एक इंश्योरेंस बिजनेस है जिससे उसको फ्री का प्रीमियम मिलते रहता है, ठीक है। सो माय पॉइंट इज वेरी सिंपल, तुम 90 का बनो फिर वॉरेन बफे का बात सुनो। यू कांट बी अ 20-year-old एंड थिंक, बाय द वे वॉरेन बफे इन हिज 20 ओपनड अ पार्टनरशिप कॉल्ड अ बफे पार्टनरशिप लिमिटेड, और भाई वो तो मेरे से भी ज्यादा एग्रेसिव था उस टाइम पे। सो तुम्हारे लेवल का एग्रेशन कम होता जाता है विथ एज। बट इफ यू आर अ 20-year-old एंड लिसनिंग टू अ 95-year-old वॉरेन बफे, देन आई एम टेलिंग यू आर इन फॉर अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। और बात ये नहीं है, मैं वॉरेन बफे को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मैं वॉरेन बफे का सारे किताब पढ़ा, स्नोबॉल से लेके और भी सारी किताबें पढ़ा, लेकिन एक पॉइंट के बाद यू वुड अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट इफ यू रीड दोस बुक्स एंड ट्राई टू इंप्लीमेंट ना, आप देखोगे फिर आप आईटीसी और एचडीएफसी बैंक में फंसे रहोगे। यहाँ पे ना लर्निंग है, ना पैसा है, ना कुछ है, ठीक है। सो द पॉइंट इज वेरी सिंपल हियर कि आपको एक बिजनेस को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। सो जहां पे लेट्स से फॉर एग्जांपल देखो, अगर पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बढ़ता जाएगा, ठीक है, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ हाई है, तो ऑटोमेटिकली यू कैन आंख बंद करके बोल सकते हो कि भाई वो इन्वेंटरी में पैसा डाल रहा है बहुत तगड़ा सीएफओ में। बोलो हाँ या ना, यस और नो?
डाल रहा होगा, राइट? अगर पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बहुत हाई है, देन यू कैन ऑटोमेटिकली से कि भाई उसका फिक्स कैपिटल में भी अच्छा खासा पैसा डाल रहा होगा, है ना, राइट? सब्सिडियरी में पैसा डाल रहा होगा, मतलब फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल में अच्छा पैसा निकल रहा है, और तुम्हें आइदर कम डिविडेंड दे रहे हैं या कुछ नहीं डिविडेंड दे रहा है। बताओ, नाउ यू कनेक्ट द डॉट्स हियर, सेल्स ग्रोथ के साथ देखो अभी कैश फ्लोज भी कनेक्ट कर दिया। सो देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डिविडेंड देना खराब है, बट ऑल आई एम सेइंग इज के लाइक all I'm saying is कि like whenever you are like whenever you are looking for dividend, make sure that company is doing its capex right. अब उसके बाद अगर कुछ पैसा तुमको मिलता भी है, then that's fine, then that is absolutely fine. Say for example, मेरे जो पोर्टफोलियो में कुछ कंपनीज है जो 30-40% से ग्रो करने के बाद भी मुझे डिविडेंड मिलता है, बट हियर इज द थिंग, आई डोंट वांट द कंपनी टू रिड्यूस द पेस ऑफ ग्रोथ टू 15% and pay me more dividends. Got it? हाँ, CDL still is a good example of growth and dividend. Nuvama is also a good example of growth and dividend. ठीक है? Because see, the point that I'm actually trying to say is very, very important here. Okay, if I am reducing growth, ठीक है, reducing my pace of growth, reducing my expansion plans to pay more dividend, कल मेरा dividend भी नहीं रह सकता है। बोलो, ये बात समझ में आया? So in order to get more dividends in the future, I need less or no dividends today. Very weirdly. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अगर ऐसा सीन है तो आपको तीनों स्टेटमेंट समझ में आ गया, और आप देख रहे हो कि कैसे प्रैक्टिकली आप हर चीज को देख सकते हो, ठीक है, हर चीज को देख सकते हो। नाउ कैन यू अंडरस्टैंड दिस, लाइक से फॉर एग्जांपल देयर इज अ कंपनी जो लेट्स से डिस्काउंट दे रहा है, प्राइस कट कर रहा है, मार्जिन डाइल्यूशन हो रहा है। डू यू नो अंडरस्टैंड हाउ डेंजरस इट इज फॉर सच कंपनीज टू पे यू डिविडेंड? ये बताओ, बताओ। हाँ, बिकॉज उस कंपनी का तो जितना भी एक पैसा भी बचता है तो अपने पास रखो ना, बिकॉज क्या होता है ना, वो स्टॉक्स गिर जाता है, शेयर होल्डर्स को प्रेशर पे डिविडेंड देना लगता है, और उससे क्या होता है ना, उसका कैश फ्लोज और खराब हो जाता है, और उससे उसका फ्यूचर में और खराबी दिखता है, और स्टॉक वहां से भी और 50% गिरता है। गॉट इट? सो दैट्स द थिंग हियर। बट एनी विच वे गाइस, एक छोटा सा लू ब्रेक ले लो। बहुत लोग रोना धोना कर रहे हैं कि लाइक लू ब्रेक चाहिए। ठीक है, विल टेक अ 5 मिनट्स का ब्रेक, देन विल कम बैक। हाँ, और जो लोग अभी बचा है, जिनको अभी लू ब्रेक में नहीं जाना है, द पॉइंट इज के लाइक यहाँ पे आप लोग, आई गेस ये जो पूरा सेशन जब हो जाएगा, वर्कशॉप हो जाएगा, कल से आई वांट यू गाइस टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। ओके, अपना कंपनीज को लोगे और ट्रैक करना चालू करोगे। नाउ डू यू अंडरस्टैंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना विदाउट रीडिंग द कॉन कॉल इज एब्सोल्यूट रीडिंग लाइक हिब्रू। आपको कोई कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आएगा। सी आई टोल्ड यू ना कि लाइक आज बिकाजी कहां कहां पे डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा रहा है। बिकाजी, आई गेस आई डोंट हैव द डेटा राइट नाउ विद मी, मुझे वो कॉपी लाना पड़ेगा। एवरी ईयर दे आर एडिंग कुछ कुछ नंबर ऑफ कितना 20-25 हजार करके टच पॉइंट्स ऐड कर रहा है। सो व्हेन यू आर एडिंग न्यू टच पॉइंट्स, दैट मींस क्या, वो नया टच पॉइंट्स में भी तो तुमको भुजिया का पैकेट बेचना है ना। टच पॉइंट्स ऐड किया, भुजिया का पैकेट नहीं है, मतलब अगर मैंने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं किया तो ऐसा नहीं होता है, करेक्ट? तो तुमको अगर नया टच पॉइंट्स ऐड कर रहे हो, यू आर गोइंग टू अ न्यू स्टेट, यू विल हैव टू ऐड more and more money, invest more and more money in inventory. देन उसके बाद से तुमको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद तुम जब नया जगह में जाओगे, जब तुम्हारा टच पॉइंट्स बढ़ेगा, फिर एक पॉइंट के बाद यू विल फील कि लाइक अरे यार मेरा सप्लाई चेन का कॉस्ट इज गोइंग अप, राइट? सो रादर देन सो आई गिव यू बेक्टर का एग्जांपल है, जो बिस्किट वाला कंपनी है, ठीक है, क्रीमिका का जो ब्रांड है। आप अगर नॉर्थ इंडिया में हो तो आपको बेक्टर पता होगा। तो क्रीमिका ने क्या किया था, पहले उनका तो लुधियाना में एक प्लांट था, ठीक है, फिर जब उन्होंने ये साउदर्न मार्केट्स और वेस्टर्न मार्केट्स को केटर किया, उनको समझ में आया भाई हम नॉर्थ से बिस्किट क्या ट्रक में भेजेंगे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में। तो उन्होंने क्या किया, एमपी मध्य प्रदेश में एक जगह धौर करके आई, तो वहां पे उन्होंने प्लांट बिठा दिया। नाउ एमपी का जो प्लांट है, दैट विल एक्ट एज अ हब फॉर ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स इन वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया। समझ में आ रहा है? और दूसरे साइड में महाराष्ट्र में एक और बेकरी प्लांट भी खोल दिया। सो महाराष्ट्र का ये बेकरी प्लांट और एमपी का वो जो बिस्किट का प्लांट पूरा साउथ और वेस्टर्न मार्केट देखेगा, बिकॉज द एग्जिस्टिंग, बिकॉज ये भी तो देखो ना, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अगर बहुत ज्यादा भी बढ़ जाता है तो दैट रिड्यूसेस मार्जिन। प्रेरणा एक बार खोलो अपना चैट बॉक्स खोलो, मतलब अगर जो लोग लू ब्रेक में नहीं है, डू यू गाइस आर गेटिंग द पॉइंट हियर कि तुमको केपेक्स करना क्यों इंपॉर्टेंट है? हाँ, सो अगर तुम्हारा पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बढ़ना है, उसके लिए तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टेंटली करना है, उसके लिए तुम्हें केपेक्स भी कॉन्स्टेंटली करना है, मतलब तुम्हारा कैश फ्लोज जब तक नेगेटिव रहेगा, इट्स एक्चुअली अ गुड साइन। समझ में आ रहा है? तो जो कल से आपको ये बोलेगा ना, जे कैश फ्लोज नेगेटिव है, खराब है, आप उनको बोलना कि भाई कुछ पढ़ ले,
ठीक है. सो द ओनली पॉइंट, बिकॉज देखो मैं भी ना यूट्यूब में आके और ट्विटर में आके सब भाषणबाजी नहीं करता, ये सब वीडियोस वगैरह नहीं बनता. मैं देख रहा हूँ पूरे ट्विटर के यूनिवर्स में जनता को सब लोग गलत चीजें खिलाए पिलाए जा रहा है. द पॉइंट इज, एक तो आपको जिम्मेदारी लेना है और दूसरे साइड है कि आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा और आपको एक बिजनेस के साथ बड़ा बनना है. सो इफ यू हैव टू स्केल अप ऑपरेशंस, इफ यू हैव टू ग्रो टू न्यूअर ज्योग्राफीज, तो आपका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा. तो इतना लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ेगा, उसके लिए कंपनीज को लगता है नहीं भाई एक नया प्लांट ही बिठा ले, है ना. तो जब तुम नया प्लांट बिठा रहे हो तो तुम्हारा सारा पैसा प्लांट में चला गया, फिर तुम्हारा वर्किंग कैपिटल में तो जा ही रहा है, बिकॉज यू आर ग्रोइंग एट 30%, 25%. तो कहां बचेगा तुम्हारा कैश, तो मुझे ये बताओ. तो तुम्हारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद, अगर तुम्हारा इन्वेस्टिंग के बाद तुमको कुछ बचता ही नहीं, सीएफएफ में कुछ नहीं बचता है, फिर अल्टीमेटली देयर इज नो नेट कैश इंक्रीज इन द कंपनी. सो बताओ, ये बात समझ में आया सबको? बहुत सिंपल है. हाँ ठीक है. और ये जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट में मैंने एक चीज में ऑब्जर्व किया हूं कि लाइक जब तक तुम्हारा कैश फ्लोज है, बैलेंस शीट है, ऑल दैट, तो आपको लग सकता होगा राइट कि लाइक शायद राजोशी ये सब कुछ देखता है. मैं कुछ नहीं देखता, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैं बता रहा हूं मैं क्या देखता हूं, आपको भी पता है मैं क्या देखता हूं. बताओ मैं क्या देखता हूं, बताओ, कोई आंसर दो. मेरे लाइफ में 2x 5x 10x मैं स्टॉक्स में बहुत पैसा, मैं इतना अल्फा जनरेट करता हूं एक लाइन आइटम देख के और कॉन कॉल पढ़ के. दैट्स इट. कॉन कॉल पढ़ो, एक लाइन आइटम चेक करो और उसका पीयर्स को देखो. नाउ यू डू अंडरस्टैंड मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि इस तरीके से सोचना. ये सब बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट एकेडमिकली बहुत बढ़िया है, लेकिन फालतू यूजलेस चीजें है ये सब. अब देखो मुझे आता है, मैंने बाय द वे 2 लेवल सीएफए भी क्लियर किया, मेरा सिम्बायोसिस के एमबीए भी है, तो मैंने वो सारी चीजें घोल के पी के देख के रियलाइज किया यूजलेस है. अब जब आपको कोई ये बताएगा कि बैलेंस शीट मत देखो, सोचो आज मैं अगर ट्विटर में जाके बोल दिया बैलेंस शीट इज यूजलेस, ये जो बूढ़े बूढ़े इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड के अंकल्स है मेरा मार देगा यहाँ पे. सो द पॉइंट इज वेरी सिंपल हियर कि आपको प्रैक्टिकली देखना है, नॉट के लाइक एक जेनेरिक वे में. जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आप एक बात बताओ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सीख गया ना, मतलब कोई चोर चोरी करने से पहले तो नहीं बोलेगा ए मैं चोरी कर रहा हूं. मतलब एनुअल रिपोर्ट 2025 में लिखा कि मैं 2027 में चोरी करूंगा, तो आपने पुराने एनुअल रिपोर्ट पढ़ा, चोरी कहां कर रहा है, फॉरेंसिक ऑडिटिंग. सबसे बड़ा चोर वो है जो ऑडिटिंग का टीम बिठाता है. अंडरस्टैंड दिस, ठीक है. सो द पॉइंट इज वेरी सिंपल हियर, आप किसी को चोरी करते हुए रोक नहीं सकते. द ओनली थिंग यू कैन डू इज रन. मतलब आपके घर में सोचो आप एक नया फ्लैट खरीद रहे हो, मैं आपको ये बोल थोड़ी सकता हूं भाई अर्थक्वेक आ सकता है, तो तुम बोलेगा ना भाई अर्थक्वेक जब आएगा तो मैं देख लेगा, है ना. और जब अर्थक्वेक आएगा भी ठीक है, चलो थोड़ा डैमेज होगा लेकिन आप भाग जाओगे ना. यहां पे पॉइंट वही होता है कि लोग पहले चोरी करने से पकड़ने के लिए बैठ रहे हैं. मतलब कौन सा, ये लोग सब सीआईडी देख के बड़ा हुआ है, मैं बोल रहा हूं ना. इसीलिए प्रॉब्लम ये हो गया है कि ये सब सीआईडी, क्राइम पेट्रोल, सन्नाटा और आहट, ये लोग ये चीज को स्टॉक मार्केट में बड़े बड़े टीम लाके बिठा रहे हैं, ये सब सीएफए और एमबीएस को. और ये बेचारे सीएफए और एमबीएस को भी तो कुछ नहीं आता है ना, तो इनको क्या आता नहीं है, मतलब क्या एकेडमिक पोपट से. तो जब यहाँ पे आता है ये बड़े बड़े नाम के अंडर खो जाते हैं, फॉरेंसिक ऑडिटिंग कर रहे हैं, ये रेशियो वो रेशियो निकाल रहे हैं, बट क्या फर्क पड़ता है. अभी आप ही लोग बता दो क्या फर्क पड़ता है. कोई फर्क नहीं पड़ता ये सबसे. कोई भी एमबीए का किताब देखोगे, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ रेशियोज ऑल यूजलेस, 99% यूजलेस. सो द होल पॉइंट इज दिस कि लाइक आपको प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा, एक धंधे को ट्रैक करना पड़ेगा. और द ओनली थिंग इज, आगे जाके अगर आप देख रहे हो कि चलो सेल्स ग्रोथ में प्रॉब्लम आ गया, या कोई और, मैं तो आईटी रेड में भागता हूं एक स्टॉक से, पता है. मतलब मेरे कंपनीज में, मेरे 2-3 स्टॉक्स में हुआ भी था, ठीक है. जैसे पॉलीकैब का कल एग्जांपल दिया, भाई वो आईटी रेड है, मैं भाग गया. सिंपल से पॉइंट है, बिकॉज मेरे पास और कितने सारे स्टॉक्स है जो ग्रो कर रहे हैं पॉलीकैब के लेवल या पॉलीकैब के ऊपर के लेवल से ग्रो कर रहे हैं. पॉलीकैब तो 20% का ग्रोथ इंजन है, 2022 उस रेंज का है. तो मैं क्यों रहूं, मैं तो कुछ भी होता है तो मैं पहले स्टॉक काटता हूं और फिर मैं सोचता हूं. लेकिन ये लोग ये नहीं करेगा, तो आपको इस एंगल से देखना पड़ेगा. सो ये हो गया बात. अब देखो द पॉइंट इज के प्रैक्टिकली देखोगे अल्फा जनरेट करना बहुत इजी है, उतना टफ नहीं है. देखो मार्केट में तुमको वॉलेटिलिटी लेना है, ठीक है. इफ यू कम एंड टेल मी के लाइक मैं वॉलेटिलिटी नहीं लूंगा, व्हाई, बिकॉज मुझे दिन में लॉसेज नहीं दिखना है, देन आपको मेरा लॉजिक से कोई मतलब नहीं है, ठीक है. आप अगर काम सही से करोगे ना, एंड यू कैन हैंडल द वोलेटिलिटी,
देन पैसा बनेगा। जैसे अभी मार्केट में जो हो रहा है, मैंने कोई स्टॉक्स तो नहीं बेचा ना, मैंने पिछले वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, पिछले 1-2 महीने में मैं पता है कब बेचा, जैसे मैं बता रहा हूं, मैं पीएन गडगिल का अपडेट देख के फिर मैंने उसमें पोजीशन को काट दिया। समझ में आ रहा है आपको? सो पीएन गडगिल का पोजीशन देख के मैंने अपने पोजीशन को काटा, नॉट बिकॉज के मार्केट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए। तो एनी विच वे, प्रेरणा, कैन यू जस्ट turn off the recording right now because we have finished off the section. Start. It's recording. Okay guys, तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि we'll just finish off the remaining part of cash flows with some practical examples and connect it to growth of course. Okay, so let me share my screen. अभी जल्दी हो जाएगा, won't take much time. Okay, so now see this. I think you guys have understood this. CFO is positive. I don't think we need to explain and go back to again those same examples. CFO is positive and the company is not giving out dividends. Yatharth Hospital, right? Because it is scaling up. Now, if you go to Yatharth का cash flow statement, you would see कि like उनके वर्किंग कैपिटल एंड उनके फिक्स कैपिटल में पैसे जा रहे हैं, सो दे जस्ट डोंट हैव एनी मनी और उनको देना भी नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखोगे यथार्थ का सीएफओ इज पॉजिटिव, जस्ट लाइक यू सॉ बीकाजी का सीएफओ इज पॉजिटिव। सी द पॉइंट दैट वी आर ट्राइंग टू से हियर इज के लाइक वेदर आपका सीएफओ पॉजिटिव हो, वेदर आपका सीएफओ नेगेटिव हो, ठीक है, मैटर करता है कि लाइक कंपनी अल्टीमेटली जाके क्या वो ग्रो कर पा रहा है कि नहीं और क्या वो अपने इन्वेस्टमेंट्स ठीक ठाक कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है, मतलब केपेक्स कर पा रहा है कि नहीं। बिकॉज अगर ये कर पाएगा, एक नेगेटिव सीएफओ विल बिकम पॉजिटिव सीएफओ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, करेक्ट। एंड एक पॉइंट के बाद जब वो बहुत बड़ा बन जाएगा, तब बहुत बड़ा मतलब क्या है, उसके बाद उसका जब और भी उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा, फिक्स कॉस्ट पे कंट्रोल मिलेगा, तो वो डिविडेंड देना भी चालू कर देगा। बट माई पॉइंट इज के लाइक यू शुड नॉट बी पेइंग डिविडेंड्स एट द कॉस्ट ऑफ ग्रोथ, okay, because that dividend is also then not sustainable if you are like say for example like if you look at businesses, all this Coal India and all that, मतलब इनका dividend से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, and that's why you see there is this ratio called dividend yield and all that nonsense. So if the business has no growth, I don't care what big number becomes your dividend yield, ठीक है। So that's the thing. Again, next is negative CFO is not always bad, right? So जैसे यथार्थ का CFO is positive, here your business is like ethos. So I'll just show one example, ठीक है, मैं सिर्फ ethos के एक बार दिखा देता हूँ, बाकी का भी आप देख सकते हो, PG Electroplast and domes तो प्रेरणा will cover in detail. So I'll just show ethos here very very quickly. Okay, so कहाँ थे हम? Stop sharing ना, हाँ, okay, हाँ। So now let me just यहाँ पे मैं एथॉस का देखते हैं। Let me just open that page, okay? Then I am going to share the screen. 1 second, give me 1 second. हाँ, cool. अब यहाँ पे जाके हम लोग करेंगे फिर से शेयर स्क्रीन, यही है ना? हाँ। Now, can you guys see Ethos Limited and just come down and see यहाँ पे the net cash flow का number. Prerna, is it visible, all the numbers? Yeah, just zoom in a little bit. Yeah, enough. ठीक है ना? ओके, कूल। तो अभी देखो यहाँ पे तुम्हारा नेट कैश फ्लो इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो हमने बताया, देख रहे हो ये नंबर नेगेटिव है। नाउ लॉजिकली सोचो, तो हम चालू कहां से करते हैं, तुम्हारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, ठीक है। तुम एक चीज देख सकते हो कि यथार्थ बोल रहा हूँ, सॉरी, एथॉस है जो ये लग्जरी, बाय द वे ये एथॉस के घड़ी नहीं है, ठीक है। एथॉस लग्जरी घड़ी बेचता है 2, 3, 4 लाख रुपए का, ये तो 30,000 रुपए के आसपास का होगा कोई घड़ी। तो एथॉस का जो लग्जरी घड़ी बेचने वाला जो कंपनी है, मतलब उनका बेसिकली क्या है, ये जो स्विस वॉचेस होते हैं उनका डिफरेंट सारे ब्रांड्स होते हैं। एथॉस क्या करते हैं, वो वॉचेस को खरीदते हैं और उसका रिटेलिंग करते हैं अपने इंडिया में, ठीक है। तो एथॉस का यहाँ पे मेन इन्वेंटरी क्या है, वो लग्जरी वॉचेस है ना। और सोचो एथॉस का पास आज कुछ 60-65 के आसपास स्टोर्स है और ये लोग स्केल कर रहे हैं, दे आर मूविंग ऑन टू न्यू, आई थिंक वेरी रिसेंटली दे वेंट टू रांची, फिर उससे पहले देहरादून। सो दे आर एडिंग न्यू सिटीज एवरी डे, ठीक है, मतलब दे एक्सपैंड कर रहा है एंड दे हैव अ स्टोर एक्सपेंशन प्लान आल्सो, जो बता रहे कि लाइक अभी 60-65 का पास स्टोर है, साल के एंड से पहले वो लोग आई थिंक और भी 12-13 स्टोर्स ऐड कर देगा एंड ऑल दैट। नाउ जब तुम नया स्टोर्स खोल रहे हो, उसमें तुम दुकान में तो घड़ी रखना पड़ेगा, राइट। सो बेसिकली क्या, तुम्हारा वर्किंग कैपिटल में तुम्हें कॉन्स्टेंटली पैसा डालना पड़ेगा। तो एथॉस का इन्वेंटरी में इन्वेस्टमेंट इज दैट घड़ी खरीद के वहां डालना,
फिर तो बेचेगा ना. इट्स जस्ट लाइक बीकाजी का जब वो भुजिया का पैकेट बनाना, तो बीकाजी का पैकेट बनाना इस बीकाजी के लिए इन्वेंटरी, और एथॉस के लिए वो स्विस वॉच को खरीदना फ्रॉम द स्विस कंपनी और अपने शोरूम में रखना इज एथॉस का इन्वेंटरी. गॉट इट. तो यहाँ पे आप देख सकते हो यथार्थ का, या यथार्थ बोल रहा हूँ यार, एथॉस, व्हाट इज माय प्रॉब्लम. लुक एट दिस. Look at the increase in inventory. Got it? The fact that Ethos is doing very well, their inventory numbers practically doubled. I think 70-75% से. So now you tell me practically, ठीक है, अगर कोई बिजनेस अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में ग्रोथ नहीं मिल रहा है, मतलब क्या, एग्जिस्टिंग बिजनेस में ग्रोथ नहीं है मतलब वो अपना एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी को बेच नहीं पा रहा है, तो क्यों वो नया इन्वेंटरी में इतना खर्चा करेगा? बताओ, लॉजिक बताओ. नाउ प्रेरणा, चैट बॉक्स खोलो, बोलो गाइस, डिड यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? परफेक्ट, लिंक हो रहा है, ठीक है. नाउ अगेन वापस चलते हैं वहां पे. नाउ यहां पे देखो, सिंस उन्होंने इतना इन्वेंटरी में पैसा डाल दिया, प्रेरणा, एम आई इन दिस स्लाइड एथॉस का? या ओके. सो लॉजिकली सोचो, तुम्हारा नेट इनकम, तुम्हारा जो वर्किंग कैपिटल से पहले तुम्हारा जो नेट इनकम था, ठीक है, फिर इन्वेंटरी में तुमने इतना डाल दिया कि भाई तुम्हारा कैश फ्लो ही नेगेटिव है. नाउ हियर इज द गेम. नाउ पिछले साल भी नेगेटिव, इस साल देखो और ज्यादा नेगेटिव. सो लॉजिकली देखा जाए, सो तुम्हारा सीएफओ नेगेटिव नंबर वेंट अप बाय 3x. गॉट इट. मैं ये चीज किसी को भी दिखाऊं आज स्टॉक मार्केट में जाके और बोलूं कि ये है कंपनी का हालत, वो बोलेगा कंपनी फालतू है, बंद हो जाएगा. बट हियर इज व्हाट रियलिटी इज. ये 5 साल का चार्ट, ये 2022 से, जब से 5 साल नहीं, जब से उसका आईपीओ आया है, 700-600 रुपए में इसका आईपीओ आया था. इसका स्टॉक आज है 28-3000 के रेंज में. सो बेसिकली द स्टॉक मेड अराउंड 4x, 4.5x in the last 3 years when the negative CFO went up 3x. No, you can't see the chart. अब मैं चार्ट नहीं दिखा रहा हूं, मैं इवन शेयरिंग भी बंद कर रहा हूं. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? इज इट क्लियर? स्टॉक 4x हो गया, ठीक है, यही मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूं. 2022 में जून में आईपीओ में आया था, 700 के लेवल में था, अभी 3000 के लेवल में है. समझ में आ रहा है क्यों? So the only thing that I'm actually trying to tell you guys is very, very simple here. Okay? If a business is growing, is scaling up, ठीक है, उसको अपनी इन्वेंटरी में और ज्यादा से ज्यादा पैसा डालना पड़ रहा है. नाउ व्हाई डिड द स्टॉक गो अप? बिकॉज एथॉस ने जितना भी इन्वेंटरी में पैसा डाला, एथॉस ने क्या किया? एथॉस ने उसको बेच पाया. समझ में आया? सो उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ नेवर वेंट डाउन. सो हियर लेट मी अगेन गो बैक. एक सेकंड रुको. How do I? 1 second. 1 second, guys. Where is that whole stop? Oh, I didn't even share screen ना. Okay. So यहाँ पे देखो, अभी हम थोड़ा बात यहाँ पे चलो देखते हैं, ठीक है. अब आई गेस आप लोग देख सकते हो. प्रेरणा, कैन यू सी दिस चार्ट? यस. हाँ, अभी देखो ये स्टॉक, मैं तो वही बता रहा हूँ कि इनका जो इन्वेंटरी का नंबर आपने देखा, राइट, 1 साल में डबल हो गया, ठीक है. उसका रीजन भी आपको समझाया कि क्यों. बिजनेस मॉडल ऐसा है, स्केल कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा घड़ी खरीद के दुकान में रख रहा है और बेच रहा है, राइट. सो बेसिकली ये है पहला मिथ कि व्हेन द नेगेटिव सीएफओ नंबर गोज अप 3x, मतलब -1200 रुपए का सीएफओ था से -3000 रुपए का सीएफओ हो गया, हाउ इज द स्टॉक मेकिंग मनी? दैट्स पॉइंट नंबर 1. द सेकंड थिंग इज द रीजन इज दिस. नाउ इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम कोविड के टाइम से, अगर तुम देखोगे, कोविड तो चलो ठीक है, 387 था वाज द नंबर, बट देन उसके बाद भी तुम देखोगे सेल्स हैव कंसिस्टेंटली इंक्रीज्ड. समझ में आ रहा है? So the point that we are trying to say is very simple here. Here Ethos का pace of sales growth और pace of inventory का growth is very similar. ठीक है, but as a result of which, since they are a small business, इनका क्या हुआ? इनका CFO नहीं बढ़ा, ठीक है, उल्टा इनका CFO और नेगेटिव से और नेगेटिव हो रहा है. सो बेसिकली क्या होता है ना, आई टेल यू, ऐसे जनरली बिजनेसेस पे कि इफ यू आर डूइंग बेटर ना, तुमको और फंडिंग मिल जाता है, ठीक है. बट ऑफ कोर्स हैविंग सेड दैट,
अगर तुम्हारा पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ घट गया, मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल उसका अगर कोई घर ही बेच रहा है और लेट्स से लोग खरीद नहीं रहा है, देन ऑल हेल विल ब्रेक लूज। तो अल्टीमेटली वही वाला पॉइंट है कि इन्वेंटरी बढ़े ना बढ़े मुझे घंटा फर्क पड़ता है, जब तक एथोस का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ हाई है तब तक मैं एथोस के साथ रहूंगा। एथोस मेरा पोर्टफोलियो का स्टॉक भी है, मैं मतलब उसका भी ऑलमोस्ट कब 2022 से ही मैं हूं, मतलब द फर्स्ट बाइंग वाज फ्रॉम 2022 के अगस्त सितंबर एंड आई केप्ट ऑन बाइंग दैट स्टॉक, ठीक है। सो द पॉइंट इज बिकॉज इट नेवर गेव मी अ रीजन टू मतलब टू सेल द स्टॉक, ठीक है। सो द पॉइंट इज एथोस इज दैट कंपनी। और एथोस का एग्जांपल लेके मैं क्यों बोला आपको यहाँ पे, बिकॉज आई हैव ऑलवेज सीन पीपल कम टू मी विद एथोस का ये नेगेटिविटी कि लाइक इन्वेंटरी के वजह से इसका नेगेटिव हो रहा है, सीएफओ नेगेटिव है, बट उसका ये रीजन है। ओके, नाउ लेट मी अगेन गो बैक, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। Rajoshi, 1 second. Somebody is sharing some sort of WhatsApp group का एक link. Guys, we don't have any WhatsApp group or Telegram channel, and I don't know who is doing this, but absolutely stop this This nonsense. guy who's doing it will be taken out I of the group. ये Yeah, SK I do करके not कोई know who बंदा है। is doing it, but somebody is asking like if it is us. No, we do not have any WhatsApp or Telegram channel, and whoever is sharing the link, stop it because I have the rights to remove you from the chat. I mean, from the workshop entirely. तुम लोगों को पता है तुम लोग बुद्धू क्यों हो? बिकॉज जो जो लेट्स से फ्रॉड है, तुम लोग एक्चुअली उसको और शेयर करके उसको और बढ़ावा दे रहे हो। तो तुम्हारा एक ही काम है, तुम्हारा काम है कि तुम उस चीज को आगे मत लेके जाओ। समझ में आ रहा है? तो तुम यहाँ पे आके उसका मार्केटिंग क्यों कर रहे हो? जो गलत काम कर रहे हैं उसको करने दो, ठीक है। और ये सब व्हाट्सएप ग्रुप एंड ऑल दैट ये सब मत करो प्लीज, ठीक है। बिकॉज देखो, डोंट ऑल्सो लेट अस गेट इनटू ऑल दैट नेगेटिविटी एंड ऑल दैट। मैं कभी वो सब करता नहीं हूँ। मैं और प्रेरणा आप देखे हो राइट, हम लोग कंटेंट बिल्ड करते हैं, हम लोग खुशी खुशी जीते हैं। सो द पॉइंट इज के लाइक वो सब चीजों पे ये जो करेगा गलत करेगा, लेकिन आपका काम ये है कि लाइक आप सही चीजों पे फोकस करो। गलत जगह पे दिमाग क्यों लगा रहे हो? मतलब ये सुन रहे हो सेशन में, क्यों व्हाट्सएप का लिंक डाल रहे हो? मतलब क्या कर क्या रहे हो? फिर सेशन से निकल जाओ। आई थिंक वो बेटर है ना। ये सब फिर ये सब काम करने थोड़ी आ रहे हो यहाँ पे। फिर टीवी देखो, बाहर जाओ, कुछ और काम करो। सो एनी विच वे, सो क्या बता रहा था मैं? हाँ, ओके। सो अभी लेट्स गो बैक। आई डोंट थिंक वी नीड टू कवर मोर। देखो सेम लॉजिक है एथॉस में, आरबीजी में सेम है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, डोम्स इंडस्ट्रीज, ये वो सारे कंपनीज है, ठीक है। अब देखो द पॉइंट इज, ये वो सारे कंपनीज जो प्रेरणा ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, मैंने भी एक्सप्लेन किया, ये सारे कंपनीज में सेल्स ग्रोथ है। एथॉस टाइप का सिचुएशन है, इसीलिए आप देखोगे ये सारे स्टॉक्स ने पैसे बनाया जब लेट्स से फॉर एग्जांपल इनका कैश फ्लोज नेगेटिव है, ठीक है। ये सेम लॉजिक पीजीईएल में देखो, आरबीजी में देखो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। एंड लास्ट एग्जांपल इज पॉजिटिव सीएफओ डज नॉट ऑलवेज मीन गुड। चलो ना एक बार देख ही लेते हैं, मतलब आई जस्ट शो यू एक बार। चलो ये एक एग्जांपल देख लेते हैं सो दैट एकदम क्लियर हो जाए बात को। चलो, बिकॉज इट्स अ मिथ, इट्स सच अ बिग मिथ कि अच्छा कैश फ्लो हो गया तो भाई पैसा डाल दो, अच्छा बैलेंस शीट दिख रहा है बिकॉज हमने सीख के आया है कि डेट इज बैड, पैसा डाल दो। रुको अब मैं तुमको दिखा रहा हूं एक परफेक्ट बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखो, Rajoshi, share. हाँ हाँ हाँ, अब देखो यहाँ पे प्रेरणा, कैन यू सी दिस स्क्रीन? लाइक दिख रहा है ना? But just zoom in a little. Yeah. हाँ, ये है हमारे एशियन पेंट्स, सबका चहिता एशियन पेंट्स। ये देख रहे हो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है, परफेक्ट है ना, एकदम ब्रिलियंट, मतलब कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है। फिर उसके बाद तुम देख रहे हो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कम है, मतलब यहाँ पे ये सीएफआई के बाद भी द नंबर इज स्टिल पॉजिटिव, ठीक है। माइनस 1900 रुपीज से 765 को माइनस करो, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है? उसके बाद तुम देखोगे यहाँ पे डिविडेंड, देख रहे हो डिविडेंड कितना बढ़ गया। नाउ ये सब क्यों कर रहा है? देखो एशियन पेंट्स का हालत सोच रहे हो? अब बोलो सब लोगों को ये समझ में आ रहा है कि नहीं? जिस कंपनी में ग्रोथ नहीं है उनका देखो, यहाँ पे कोई केपेक्स नहीं हो रहा है, लेकिन उनका देख रहे हो डिविडेंड कितना बढ़ा दिया, 700 रुपए बढ़ गया, मतलब 2000 से, आई थिंक ये किस में है, करोड़ में, कैश में? हाँ ये तो करोड़ में ही होगा, एशियन पेंट्स है। तो इनका डिविडेंड 40% बढ़ गया। अब लेट्स गो बैक एंड आस्क यू गाइस अ क्वेश्चन, समझा? बोलो, एशियन पेंट समझ में आया? कि क्यों एक कंपनी जिसमें केपेक्स का कोई स्कोप नहीं है वो डिविडेंड दे दे के शेयर होल्डर्स को खुश रखने का कोशिश कर रहा है, लेकिन स्टॉक मार्केट क्या खुश हो रहा है? नहीं।
स्टॉक का इतना धुलाई किया है, और भी धुलाई होगा अगर ग्रोथ रेट वापस नहीं आए तो. सो नाउ यू अंडरस्टैंड. जबकि आप व्हेन यू ओपन एथॉस, यथार्थ, पीजी, इलेक्ट्रोप्लास्ट, कोई भी ग्रोथ कंपनी को अगर आप देख लोगे, अगर आप इवन अगर जो बिकाजी का भी जो एग्जांपल हमने देखा एक बंदे ने ये पूछा अभी शुड वी बाई. भाई एट द एंड ऑफ द डे आई कैन ओनली टेल यू वन थिंग यहाँ पे, कि जो कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप देख रहे हो ना कि लाइक यू नो वो केपेक्स में पैसा कम डाल रहा है और से फॉर एग्जांपल डिविडेंड को बढ़ा रहा है, मतलब उसमें ग्रोथ नहीं है. इसीलिए एज अ रिजल्ट ऑफ विच यू विल सी के उसका स्टॉक चलता नहीं है. लेकिन अगर आपका सेल्स ग्रोथ हाई है तो ऑफ कोर्स आपके कैश फ्लो में आप देखोगे आपका सीएफओ नंबर नेगेटिव है, सीएफआई नेगेटिव है, राइट. आपको बाहर से फंडिंग करना पड़ेगा, दिस एंड दैट. बैलेंस शीट में भी आप देखोगे क्यूआईपी करेगा तो लोग आके यहाँ पे लफड़ा करेगा कि भाई तूने क्यूआईपी किया, इक्विटी बेस बढ़ गया, आरओई घट गया, बट दैट इज हाउ यू ग्रो. सो इट्स लाइक कोई भी बिजनेस को अगर ग्रो करना है, सो दे डोंट जस्ट ग्रो रैंडमली, दे हैव टू टेक अ लॉट ऑफ रिस्क, दे हैव टू टेक अ लॉट ऑफ चांसेस, दे हैव टू गो टू न्यूअर ज्योग्राफीज, दे हैव टू इंटरेक्ट विद पीपल विद डिफरेंट कल्चर. और जिसको ग्रो नहीं करना है वो वही अपने गली का कुत्ता है. तो गली का कुत्ता कंफर्टेबल होता है, लेकिन गली का कुत्ता कभी अमीर भी नहीं होता है. ठीक है. सो द पॉइंट इज यू हैव टू टेक अ कॉल इन योर लाइफ. ये आपके पर्सनल लेवल का ग्रोथ के बारे में ही बोल रहा हूँ. ठीक है. पर्सनल लेवल का ग्रोथ हो या बिजनेस इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ द प्रोमोटर्स ना, और कुछ नहीं है. मतलब मुझे दुनिया पे कब्जा करना है. पहले के जमाने में अकबर बोलता था चलो तलवार लो और पीटो सबको और मैं पूरा दुनिया ये कर लूंगा. आज लोग तलवार लेके दुनिया कब्जा नहीं कर रहे. आज कोई मोबाइल बेच के दुनिया कब्जा कर रहा है. आज कोई पेंट बेच के दुनिया कब्जा कर रहा है. सो दैट इज द होल गेम हियर. ओके. सो जब ये कर रहा है कब्जा, जब कोई कंपनी अगर ग्रो कर रहा है, यू मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग एंड वन थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइज में, कि तुम्हारा ये जो चीज है इट्स अ जर्नी. So the cash flow statement gets better over a period of time. Your company will not pay you dividends to pay you dividends. लेकिन जब तक वो तुम्हारा कंपनी starts paying you dividends, शायद वो स्टॉक 20x हो चुका होगा. ठीक है. So दैट्स द होल थिंग हियर. तो यहाँ पे आप देखोगे ना, मेरा एक्चुअली बहुत लोग मुझे बोलते हुए दैट आई हैव मोर ऑफ अ वीसी माइंडसेट देन एक लार्ज कैप इन्वेस्टर का माइंडसेट, व्हिच इज ट्रू. लेकिन द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए, मतलब अगर कोई कंपनी मुझे 10, 12, 15% का ग्रोथ दे रहा है, केपेक्स नहीं कर रहा है, गाइडेंस घटा रहा है, तो वीसी हो या नॉन वीसी हो क्या फर्क पड़ता है. पैसा तो नहीं बना रहा है, और जहां पे बड़ा पैसा नहीं बनाने का जगह है, मैं वहां अपना दिमाग भी नहीं लगाता हूं. ठीक है. सो ये हो गया बात. अब चलो, हो गया बिकाजी का कैश फ्लो बता दिया, हो गया सब कुछ. अच्छा, डिविडेंड आपने एक चीज देख लिया और कुछ बोलना नहीं है. आपको पता है डिविडेंड कहां मिलता है, वो सीएफएफ के सेगमेंट के अंदर. अ कंपनी नॉट पेइंग डिविडेंड इज नॉट बैड. हमने सब एक्सप्लेन कर दिया. देखो ये सारे कंपनीज जो इतने अच्छे रेट से ग्रो कर रहे हैं, कोई डिविडेंड नहीं देता है. कंपनीज दैट पे डिविडेंड्स एंड हैव लॉस्ट सेल्स मोमेंटम. तो एशियन पेंट्स का आपने देखा कैसे 40% से डिविडेंड्स बढ़ा, लेकिन उसका सेल्स वेंट डाउन बाय 6-7%, राइट. तो मार्केट को घंटा फर्क पड़ता है वो डिविडेंड से. तो कल अगर पीडी लेट, आई टेल यू द नैरेटिव इन द मार्केट हियर. I guess we are done here, right? हाँ. Okay. So एक बार प्रेरणा जस्ट एक बार खोलो उसको, चैट को खोलो. सो बिफोर वी ब्रेक, लंच में जाने से पहले पहला चीज एक बात आप लोग क्लियरली बता दो कि पूरा फ्लो समझ में आया कि नहीं. क्योंकि पूरा फ्लो अगर तुमको समझ में आ गया, फिर प्रेरणा लंच के बाद क्या करेगी, पूरा प्रोसेस दिखाएगी विथ 3 कंपनीज इन 1 सेक्टर. ठीक है. नाउ ये क्यों दिखाएगी, इसके बाद भी हम क्यों दिखाने की कोशिश करेंगे ना, बिकॉज ताकि आपके प्रैक्टिस में भी साला प्रॉब्लम ना आए. बिकॉज कल आप जब प्रैक्टिस करने बैठोगे भी तो कुछ इधर उधर का डाउट आ सकता है, करेक्ट. तो वो भी ना आए. सो द पॉइंट इज के लाइक इसके बाद मतलब तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है. ठीक है. सो यही है गेम. सो कोई भी कंपनी जो लेट से फॉर एग्जांपल डिविडेंड दे रहा है, कोई भी कंपनी जिसका फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है, कोई भी कंपनी जिसका ब्रांड के बारे में लोग बातें कर रहा है, नन ऑफ दैट मेक सेंस अनलेस एंड अंटिल इट कैन ग्रो एट अ फास्ट पेस. ठीक है. सो द पॉइंट इज हाँ, किसी ने पूछा एचडीएफसी बैंक 7% से क्यों ग्रो करता है, बिकॉज 7% 7 के वजह से वो स्टॉक चलता नहीं है. 7% तो एफडी भी देता है ना. उसका लोन बुक 6-7% से ग्रो कर रहा है, तो मैं एफडी ना कर लू, है ना. मैं स्टॉक मार्केट में आके वोलेटिलिटी सहू, ये सहू वो सहू, और मुझे 7% में आऊं. मैं अगर मैं वोलेटिलिटी ले रहा हूं, देख तो रहे हो मेरा पोर्टफोलियो कभी कभार ऐसा लगता है कि पूरा जीरो ही हो जाएगा. ऐसा होता है क्योंकि मेरा तो मिड एंड स्मॉल कैप्स में ज्यादा है. तो अगर मैं इतना रिस्क ले भी रहा हूं, ठीक है, मैं अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा हूं, एटलीस्ट मुझे उस कंपनी से 30-40% तो मिलना चाहिए ना, राइट. और मैं इतना चीज करके मैं बाजार में आऊंगा और मैं खरीदूंगा आईटीसी.
क्या होगा, मतलब वही वाला पॉइंट है. सो द पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू से हियर इज वेरी वेरी क्रिटिकल. इज के लाइक आपको अगर ये तीनों चीजें समझ में आ गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ग्रोथ के साथ अगर आपको कनेक्शन समझ में आ गया विथ ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स, एंड आई थिंक इट्स ट्रू राइट, आपको सारी चीजें समझ में आ गया. देखो कुछ चीजें हैं कि यू माइट हैव मिस्ड इट और समझ में नहीं आया, तो रिकॉर्डिंग तो आपको मिल ही जाएगा, तो रिकॉर्डिंग में आप जाके वापस वो सुन लेना. आई एम प्रीटी श्योर यू विल गेट अ ग्रास्प ऑफ दिस, बिकॉज हम दोनों ने यहाँ पे बहुत अच्छे से स्लोली बात किया है ना. प्रेरणा, डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग, बिकॉज इसके बाद हम लंच पे चले जाएंगे. No, not necessarily. You can just complete the last slide. Why connected growth with everything. हाँ वही वही, वो तो मतलब आई गेस सबको अभी अभी पूरा इम्प्लाइड ही हो गया, बट ठीक है चलो कनेक्ट कर ही लेते हैं. Guys, I just want you to read this slide, ठीक है. So basically क्या है, growth is indication of a better future for a company. I'm not explaining anything. The terminal value of a business increases with growth. Terminal value का मतलब है, ये सब सुनो, ये सब फाइनेंस और सीए पे डायलॉग है, बट टर्मिनल वैल्यू का मतलब ये होता है कि लेट्स से कब बिजनेस जाके बंद हो जाएगा. सो टर्मिनल वैल्यू इज लाइक द एंड गोल ऑफ अ बिजनेस. So terminal value goes up ना, when let's say for example your growth rate increases. The longevity of a business increases with the rise in pace of growth. Got it? But if you are not growing, then people will start questioning the longevity of the business. That is why you would see businesses that aren't growing, irrespective of the fact that they're paying dividends, उनका स्टॉक चलता नहीं है, लोग उस स्टॉक से चले जाता है, and they are lying at a low PE. Got it? समझ में आ रहा है? या फिर उसका हाई PE है तो उसका PE का de-rating होता है. So only and only when you see a high pace in sales growth और उसके साथ if you say for example get operating leverage, मतलब ये product mix change हो गया या फिर जो भी हो raw material prices घट गया, कुछ भी रीजन के वजह से आपको अगर हाई पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ और ऑपरेटिंग लेवरेज मिल जाता है, then the market thinks of your longevity to be infinite. ठीक है, और वही बिजनेस का पूरा परसेप्शन बदल जाता है once the growth goes out. A lack of growth is called entropy. Entropy is a concept यार आपने स्कूल में पढ़ा होगा. Entropy is a situation where you go into chaos, where you go into disorder. तो जहां पे ग्रोथ नहीं है वहां पे एंट्रोपी है. समझ में आ रहा है? मतलब मैं बोलता हूँ फिजिकल हेल्थ में भी, इफ यू आर नॉट वर्किंग आउट, इफ यू आर नॉट गोइंग टू द जिम, योर बॉडी is subjected to entropy. That means your body is decaying every day and one day आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है. इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ ना, जिम जाओ, प्रोटीन खाओ, लाइफस्टाइल को ठीक करो. Because if you are a sloth sitting at somewhere not growing, not growing your muscles, building your muscles, ठीक है, आप अगर भागा दौड़ी नहीं कर रहे हो, if you are not walking around, then your entropy is going to kill you. The same thing with a business. So business हुआ या इंसान हुआ, it's the same shit at the end of the day. फ्यूचर बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट इंप्रूव्स विद बिजनेस ग्रोथ. ये तो आई गेस मतलब सबके दिमाग में फिट हो गया होगा. द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट इज डिटरमाइंड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस. आपको कैसे पता कि अगले 10 साल में टॉप का मैनेजमेंट कौन बनेगा? जो कंपनी सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा, जो सबसे अच्छा रेट से ग्रो करेगा, है ना. तभी तो हम पीछे जाके देख के बोलेंगे वाओ ये कितना अच्छा मैनेजमेंट है, राइट. वरना आप एक छोटे कंपनी के मतलब इट्स लाइक 2008 में किसको पता था कि बजाज फाइनेंस विल बी आज का बजाज फाइनेंस, है ना. उस टाइम तो बजाज फाइनेंस के साथ बहुत सारे अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट्स का बेचने वाला बहुत सारे कंपनीज आया था, राइट. लेकिन जिसने बजाज फाइनेंस को ट्रैक किया, आज वो घूम के बोल रहा है राजीव जैन तो मस्त बंदा है, उदय कोटक तो मस्त बंदा है, आदित्य पुरी वाज ग्रेट, शशिधर जगदीशन वाज ग्रेट, वो हमारा वो बजाज ऑटो का जो बंदा है ना, राजीव बजाज, वो है ग्रेट. सो माय पॉइंट इज कि लाइक ओनली इन हाइंडसाइट कैन यू एनालाइज मैनेजमेंट, बट हाउ डू यू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट? बाय नॉट लुकिंग बैक. यू विल हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि लाइक एनी मैनेजमेंट जब वो अच्छा कर रहे हैं उसके बारे में लोग अच्छा ही बोलेगा. जब उसमें ग्रोथ चला जाएगा, जैसे राणा कपूर जब तक येस बैंक 40% से ग्रो करता था और जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं निकला था, राणा कपूर वाज थॉट ऑफ टू बी द नेक्स्ट आदित्य पुरी एक्चुअली, ठीक है. एंड देन ऑल द प्रॉब्लम स्टार्टेड, ठीक है. सो द पॉइंट इज के लाइक ओनली आफ्टर द एक्सीडेंट डू वी से दैट द मैनेजमेंट इज गुड और बैड. सो माय पॉइंट इज टू नॉट कोई भी मैनेजमेंट को अच्छा या बुरा नहीं बोलना है, बिकॉज हमारा काम वही है ना कि वो जो मैनेजमेंट है वो हमारा नौकर है. जो सीईओ है, हम कौन है? शेयर होल्डर, वी आर मालिक, राइट. सीईओ कौन है? नौकर है. तो वो नौकर जब तक परफॉर्म करेगा हमारे लिए, तब तक उसके सामने रहेंगे, और जब तक वो नौकर परफॉर्म करना बंद कर देगा हम किसी और नौकर के पास चले जाएंगे. देखो सुन के बुरा लगता है, बट सीईओ एक कंपनी का सबसे बड़ा नौकर होता है, ठीक है. सो द पॉइंट आई एम सेइंग इज, किसका नौकर होता है? शेयर होल्डर्स का, प्रोमोटर्स का. सो द पॉइंट दैट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से इज वेरी वेरी सिंपल
हियर, आपको कोई नौकर को जस्टिफाई नहीं करना है, आपको कोई कंपनी को जस्टिफाई नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है वो नौकर परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। जब तक वो परफॉर्म करेगा उस नौकर के साथ रहो और पैसा बनाते जाओ, लेकिन जब तक वो परफॉर्म नहीं करेगा फिर किसी और नौकर को ढूंढो। सो ये हो गया बात। एंड वी डू नॉट फॉर्म इमोशंस विद बिजनेसेस, वी यूज द बिजनेस टू मेक मनी एंड गेट आउट एज सून एज पॉसिबल। सो ये हो गया। आई विल स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग। सो बिफोर वी ब्रेक फॉर लंच, गाइस जस्ट टेल मी, हैव यू अंडरस्टूड द एंटायर थिंग? बताओ, सब समझ में आया? चलो बढ़िया। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी 1:30 के आसपास हुआ है। देखो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बिकॉज जितना अभी यहाँ ज्यादा लेंगे उतना रात तक खींचना पड़ेगा, और अभी उतना आपका क्वेश्चन भी ले नहीं पाएंगे। सो ऑल वी आर आस्किंग इज कि लाइक प्रोबेबली विल टेक अ 15 to 20 मिनट्स। प्रेरणा 20 मिनट में तुम्हारा खाना हो जाएगा, Yeah. है ना? तो वी विल प्रोबेबली मीट बाय 1:45 to 1:50 के रेंज में। आप लोग 15-20 मिनट में जल्दी से, आज एक ही का दिन तो बात है ना, जल्दी से खाना खा के आ जाओ। हम लोग 1:45 के आसपास वापस चालू कर देते हैं, ठीक है? देन प्रेरणा विल टेक केयर ऑफ द एंटायर थिंग, ओके? हैंड होल्ड करके पीपीटी कॉन कॉल खोल के पूरा चेकलिस्ट का प्रोसेस दिखा के वैल्यूएशंस तक हम पहुंचेंगे। देन आई विल टेक ओवर फ्रॉम द वैल्यूएशन पार्ट एंड आई विल शो यू माय पोर्टफोलियो और सारे कंपनीज का वैल्यूएशन कहां पे क्या है, एंड इट विल बी अ फैसिनेटिंग एक्सरसाइज एंड डिस्कशन, ठीक है? हाँ, so any which way, so now okay,